Hello dear students, today sequences and series exercise 2.6. See question number 5. Find the sum 5 into 7 plus 9 into 11 plus 13 into 15 plus up to n terms. So we have to find the sum of the given sequence 5 into 7 plus 9 into 11 plus 13 into 15 up to n terms. Here the given sequence is 5 into 7 plus 9 into 11 plus 13 into 15 up to n terms. So if we separate the product of the terms, we get the first number in each product is 5, 9, 13 and so on up to r terms are in an AP. So these terms 5, 9, 13 and so on, they are in an AP. So we should write here 5, 9, 13 up to R terms. Then rth term of the sequence, first we separate the sequences and find the rth term of each sequence. So rth term here 5 plus r minus 1 into d, that is a plus n minus 1 into d formula here for AP. For the rth term, so 5 here first term and common difference d, 9 minus 5, that is 4. So we should write here a plus r minus 1 into d form, that is 5 plus r minus 1 into 4, and simplifying we get here 4r minus 4. So 5 plus 4r minus 4 becomes 4r plus 1. Similarly, the second product of each term is what? 7, 11, 15 and so on up to r terms, and they are also in an AP. So rth term for the second sequence 7 plus r minus 1 into d. Simplifying here, so we get here 4r minus 4, that is 7 plus 4r minus 4 becomes 4r plus 3. Or in other words, you can say for the first sequence it's a TR, means rth term is 4r plus 3. The second product of each term is increased by 2. So you should increased by 2 here also, that is 4r plus 1 plus 2. So we get rth term of the second sequence 4r plus 3. सबसे पहले हमें ये फाइंड कर लेना है कि ये दीज टू सीक्वेंसेस जो यहाँ पर सेपरेटली सीक्वेंसेस हैं, इनके rth टर्म क्या हैं, और जो हमारा गिवन सीक्वेंस है इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू एपीज, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू एपीज, और उनका निकालना है सम. तो पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एपी के सभी टर्म को सेपरेट करते हैं, दैट इज फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ईच टर्म एंड देन सेकंड प्रोडक्ट ऑफ ईच टर्म, and both are in an AP, so we should find both TR. इनके rth टर्म को फाइंड कर लेते हैं. तो rth टर्म फर्स्ट सीक्वेंस के लिए मिल गया 4r plus 1 एंड फॉर द सेकंड सीक्वेंस 4r plus 3. अब देखो यहाँ पर सभी टर्म का क्या है, मल्टीप्लिकेशन, सो वी शुड मल्टीप्लाई बोथ rth टर्म आल्सो. तो ये हमें मिल जाएगा अपना rth टर्म फॉर द गिवन सीक्वेंस. So we should write here hence 5 into 7 plus 9 into 11 plus 13 into 15 plus up to n terms equal to summation r equal to 1 to n 4r plus 1 multiplied by 4r plus 3. अब यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि r equal to 1 to n means if we put r equal to n, so we get here 4n plus 1 4n plus 3 means जो हमें यहाँ पर up to n टर्म्स लिखा है तो हमें ये nth टर्म यहाँ पर मिल गया है, लेकिन हमें यहाँ समेशन यूज करना है rth टर्म, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे और उनके वैल्यूज हैं 4r plus 1 into 4r plus 3. Now simplify the summation 4r plus 1 into 4r plus 3, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, 16r स्क्वायर प्लस 16r और प्लस 3, ये हमें मिल जाता है फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू ब्रैकेट्स. तो यहाँ पर समेशन r इक्वल टू 1 टू n 16r स्क्वायर प्लस 16r प्लस 3. नाउ टेकिंग सिग्मा फॉर ईच टर्म, तो सिग्मा विथ ईच टर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, 16 इज कांस्टेंट टेकन आउट, 16 मल्टीप्लाइड बाय समेशन r इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर. फॉर द सेकंड टर्म 16r के लिए
प्लस 16 समेशन r इक्वल टू 1 to n एंड r प्लस 3 इज कांस्टेंट, तो यहाँ पर प्लस 3 लिखना है क्योंकि 3 को हम लोग 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो 3 इज आउट ऑफ द सिग्मा, r इक्वल टू 1 to n एंड 1। तो ये हमें सभी टर्म्स एक्सपैंड कर लेना चाहिए। एक्सपैंड करने के बाद अब इनकी हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो जैसा कि फार्मूला लिस्ट में दिया गया है, और जो भी स्टूडेंट को फार्मूला नहीं मालूम है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं, एक लिंक दी गई है, तो क्लिक ऑन दैट लिंक, यू विल गेट फार्मूला। Here it is 16 summation r square is n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 plus 16 summation r equal to 1 to n r, that is n into n plus 1 upon 2, and summation 1 from 1 to n is n, it is plus 3n। तो आइए अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इट गोज बाय 2 बोथ, तो 2 8 जा 16, 2 3 जा, इसको 2 से कट करना है और यहाँ पर 2 8 जा 16, और इसके साथ ही हमें देखना है कि देखो n कॉमन n, तीनों में n कॉमन है, तो टेकिंग n कॉमन वी गेट 8 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 बिकॉज n इज कॉमन, और यहाँ पर ओनली प्लस 3 इज रिमेनिंग बिकॉज n इज कॉमन। तो इट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई 8 इंटू, अब n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बिकम्स 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, और यहाँ पर है 3 और यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं है दोनों में, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय 3 कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 24, तो प्लस 24 इंटू एन प्लस 1, और यहाँ प्लस 3 इंटू 3 दैट इज 9, हियर प्लस 9 एंटायर अपॉन 3। अब ये होल डिनोमिनेटर यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, तो n इंटू, फिर से देख लेते हैं, n इंटू 8 मल्टीप्लाइड बाई 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 प्लस 24 इंटू n प्लस 1 प्लस 9 एंटायर अपॉन 3। नाउ टेकिंग 3 आउट ऑफ द ब्रैकेट, सो वी गेट हियर n बाई 3, एंड हियर 8 इंटू 2n स्क्वायर 16n स्क्वायर, 8 इंटू 3n 24n, 8 इंटू 1 8 प्लस 24n प्लस 24 प्लस 9। Simplifying all these terms, we get 16n square plus 48n, क्योंकि 24n plus 24n here, and 8 plus 24 plus 9 becomes 41। तो इस तरह से हम लोगों को जो फाइनल आंसर यहाँ पर मिलता है, इट इज इक्वल टू n अपॉन 3 इंटू 16n स्क्वायर प्लस 48n प्लस 41। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर, और ये जो टेक्सटुअल आंसर है यहाँ पर वो थोड़ा सा मिस्टेक है, इसके लिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक में आंसर चेक करके अपना फाइनल कर लो। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस अप टू n टर्म्स। अब देखो यहाँ पर एक सीक्वेंस दी गई है, और अगर हम लोग क्लियरली इसको देखें, बहुत ध्यान से देखते हैं, तो दिस इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द इवन नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अप टू n terms. Since the numbers 2, 4, 6, 8 are in an AP, here common difference D 4 minus 2 that is 2, and first term A equal to 2. So find rth term, rth term equal to 2 plus r minus 1 into 2, और यहाँ पर हम लोग फार्मूला जो अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग द फार्मूला फॉर TR that is TN फार्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी आर के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया हमारा फार्मूला अप्लीकेबल हो गया। और यहाँ पर 2 प्लस आर माइनस 1 इंटू 2, तो यहाँ हो जाएगा 2r माइनस 2, 2 गेट कैंसल्ड, ओनली 2r इज रिमेनिंग। वैसे डायरेक्टली भी हम लोग लिख सकते थे यहाँ पर 2r स्क्वायर, लेकिन हम लोग फाइंड करके एक्सप्लेन करके लिखते हैं, बेटर रहेगा। तो rth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस, अब देखो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर ऑफ द ईच टर्म, तो हम लोग जो tr यहाँ पर rth टर्म मिला उसका भी स्क्वायर कर देते हैं। तो rth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस स्क्वायर ऑफ 2r दैट इज 4r स्क्वायर। Therefore, 2 square plus 4 square plus 6 square plus 8 square plus up to n terms can be written in the sigma notation form r equal to 1 to n 4r square। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, 4 is constant taken out, तो 4 multiplied by summation r equal to 1 to n r square। और जैसा कि सबको पता है कि व्हाट इज द समेशन r स्क्वायर, समेशन r स्क्वायर इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 और मल्टीप्लाइड बाई 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ पर हमें जो आंसर यहाँ मिल जाता है क्लियरली कि 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 3।
तो ये आंसर हमें इस क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्लियरली यहाँ पर मिल जाता है और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 अपना यहाँ पर हो गया कंप्लीट। तो ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाएगा तो यहाँ पर फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीक्वेंस स्क्वायर ऑफ 2 स्क्वायर ऑफ 4 प्लस स्क्वायर ऑफ 6 प्लस स्क्वायर ऑफ 8 एंड सो ऑन, जैसा टर्म आता है अप टू आर टर्म्स अप टू एन टर्म्स, तो हमें इमीडिएटली समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, कि इसका जो nth टर्म है वो होगा 2r होल स्क्वायर, दैट इज 4r स्क्वायर, और 4r स्क्वायर के लिए 4 इज आउट, समेशन आर स्क्वायर इज n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6। तो यहाँ पर अगर हम लोग ब्रैकेट को मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं तो सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ एन क्यूबिक पॉलिनोमियल, और नहीं मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में ऐसा ही लिख करके छोड़ सकते हैं, जो कि यहाँ पर सिर्फ 4/6 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 2/3 इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन, फाइंड 70 स्क्वायर माइनस 69 स्क्वायर प्लस 68 स्क्वायर माइनस 67 स्क्वायर प्लस 66 स्क्वायर माइनस 65 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज द लास्ट टर्म। हमें इस क्वेश्चन में देखो बहुत ही केयरफुली ध्यान देना है कि ये सम तो है, लेकिन यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द ब्रैकेट्स, और वो ब्रैकेट्स में भी कैसा है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। तो जो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर या टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स भी हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 70 स्क्वायर माइनस 69 स्क्वायर, अब इसके बाद जो हमारा अगला टर्म आता है नेक्स्ट ब्रैकेट है वो क्या है 68 स्क्वायर माइनस 67 स्क्वायर प्लस 66 स्क्वायर माइनस 65 स्क्वायर। तो हम लोग देखते हैं कि ये नंबर्स तो हैं कॉन्सिक्यूटिव, मतलब यहाँ पर एक नंबर इवन है तो दूसरी ऑड है। तो आइए इसके सोल्यूशन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। Since given sequence is 70 square minus 69 square प्लस 68 स्क्वायर माइनस 67 स्क्वायर, और ये ध्यान देते जाना कि यहाँ पर ब्रैकेट्स भी प्रॉपर यूज किया गया है, तो ब्रैकेट्स कंपलसरी यूज करना है, अदरवाइज मिस्टेक हो सकती है। प्लस 66 स्क्वायर माइनस 65 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो हम लोग अगर बहुत ही केयरफुली देखें तो फर्स्ट नंबर ऑफ ईच ब्रैकेट इज इवन, first number of each bracket is even and second number of each bracket is odd. So we should select even numbers and odd numbers separately. तो आइए हम लोग सबसे पहले इवन नंबर्स का एक सेट बनाते हैं। तो इट इज इक्वल टू 70 स्क्वायर प्लस 68 स्क्वायर मीन्स फर्स्ट नंबर फ्रॉम ईच ब्रैकेट। तो 70 स्क्वायर प्लस 68 स्क्वायर प्लस 66 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 2 स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर पहुंच गए। तो 2 to 70 हम लोगों को ये भी ध्यान देना है कि फ्रॉम, देखो अभी हम लोग अगर उल्टा देखें यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में देखें कि फ्रॉम 2 to 70, जैसे 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू 70 स्क्वायर, तो हमारे पास जो इवन नंबर है फ्रॉम 2 to 70 वो कितने नंबर्स हैं 35 नंबर्स। ये हमें ध्यान देना है अभी से कि 35 नंबर्स यहाँ पर इवन है और 35 नंबर्स ही ऑड भी मिलेंगे। तो जो ऑड नंबर्स हैं देखो माइनस 69 स्क्वायर माइनस 67 स्क्वायर माइनस 65 स्क्वायर एंड सो ऑन माइनस 1 स्क्वायर। तो ईच नंबर इज नेगेटिव, सो वी शुड टेक नेगेटिव साइन कॉमन या आउट ऑफ द ब्रैकेट। तो वी गेट इन द ब्रैकेट माइनस, यहाँ पर देखो यहाँ लिखा गया देन ब्रैकेट 69 स्क्वायर प्लस 67 स्क्वायर प्लस 65 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू 1 स्क्वायर। ये नंबर हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब अगर हम लोग इनकी एक्सप्लेनेशन को देखें कि जैसा भी मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में दिखाया कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स, तो इवन नंबर का अगर हम लोग टीआर फाइंड करते हैं 1 से वहां पर स्टार्ट है, तो हमें जो नंबर्स यहाँ पर मिलेगी वो नंबर यहाँ पर मिल जाती है 2r होल स्क्वायर, दैट इज 4r स्क्वायर, ये समेशन के फॉर्म में। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सेपरेटली वापस से एक्सप्लेन कर दिया है जिससे स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो कि सिंस 70 स्क्वायर प्लस 68 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 2 स्क्वायर। तो अगर हम लोगों को इसका टीआर फाइंड करना है तो हमें उल्टा साइड से जाना चाहिए कि टीआर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर एंड सो ऑन इधर से फाइंड करना चाहिए, तो हमें मिलेगा 2r
होल स्क्वायर। तो ये है 2r होल स्क्वायर फ्रॉम 1 to 35। तो हमें 2 स्क्वायर से लेकर के 70 स्क्वायर तक मिल जाएगी नंबर, क्योंकि देखो r इक्वल टू 1 रखोगे तो ये 2 स्क्वायर मिलेगा, r इक्वल टू 2 4 स्क्वायर, r इक्वल टू 3 6 स्क्वायर एंड सो ऑन। और r इक्वल टू अगर हम लोग यहाँ 35 पुट कर दें तो 70 स्क्वायर, जो कि इसका फर्स्ट टर्म है या रिवर्स ऑर्डर से लास्ट टर्म है। तो ये हमें मिल जाता है समेशन 2r होल स्क्वायर फ्रॉम 1 to 35। अब यहाँ 1 to n नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो फिक्स्ड नंबर है, सिर्फ 70 तक है। तो हमारे पास ये हमें पता है कि फ्रॉम 2 to 70 देयर आर 35 इवन नंबर्स एंड 35 ऑड नंबर्स। तो अब आइए इनके ऑड नंबर का भी डिस्कस करते हैं कि सिंस 69 स्क्वायर प्लस 67 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 1 to 35 2r माइनस 1 होल स्क्वायर। अब देखो इवन नंबर क्या था 2r, तो ऑड नंबर हो जाएगा 2r माइनस 1। अब यहाँ क्लियरली चेक भी कर सकते हो कि r इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये मिलेगा 2 माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर, r इक्वल टू 2 तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3 स्क्वायर। तो इस तरह से अगर हम लोग r इक्वल टू 35 पुट करें तो ये मिलेगा 69 स्क्वायर। तो रिवर्स ऑर्डर से 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 69 स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास जो समेशन आया यहाँ पर फ्रॉम r इक्वल टू 1 to 35 टू r स्क्वायर फॉर इवन नंबर्स एंड समेशन r इक्वल टू 1 to 35 टू r माइनस 1 होल स्क्वायर फॉर द ऑड नंबर्स। तो ये 2 सीक्वेंसेस हमें मिल गए हैं। अब इनको हम लोग समेशन के फॉर्म में यहाँ पर लिख लेते हैं। तो फ्रॉम दिस स्टेप टू कंटिन्यूसली हियर इट इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 1 to 35 टू r होल स्क्वायर माइनस summation r equal to 1 to 35 2r minus 1 whole square. Now both the summation has the same limit, so we should take common summation. So r equal to 1 to 35 summation r equal to 1 to 35 2r whole square minus 2r minus 1 whole square. तो ये जो टर्म है हमें यहाँ पर क्या करना है कि थोड़ा सा इसको क्लियर करना है, और ये क्लियर करने के लिए जो स्क्वायर का टर्म है ये यहाँ पर कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रैकेट है वो यहाँ पर है न कि बाहर। तो यहाँ पर जो स्क्वायर है यू शुड कैंसिल इट, सॉरी, दिस इज कैंसल्ड। नाउ अब यहाँ पर जो टर्म में मिला समेशन r इक्वल टू 1 to 35 स्क्वायर ऑफ 2r माइनस स्क्वायर ऑफ 2r माइनस 1। नाउ सिंप्लीफाइंग वी गेट समेशन r इक्वल टू 1 to 35 हियर इट इज 4r स्क्वायर माइनस, अब देखो इसको एक्सपेंड करोगे तो 4r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 मिलेगा, बट बिफोर द ब्रैकेट नेगेटिव साइन हियर, सो वी गेट हियर माइनस 4r स्क्वायर प्लस 4r माइनस 1। तो प्लस 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर गेट कैंसल्ड, वी हैव समेशन r इक्वल टू 1 to 35 4r माइनस 1। नाउ दे कैन बी रिटन 4 multiplied by summation r equal to 1 to 35 r माइनस समेशन r इक्वल टू 1 to 35 1। अब इनके वैल्यूज पुट करते हैं और क्या करते हैं, तो देखो सबसे पहले हमें ये फार्मूले पर आना है। और मैं फिर से यहाँ पर एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि जो भी स्टूडेंट अभी हमारे चैनल पर न्यू ज्वाइन हुए हैं वो अगर फार्मूला उनको नहीं मालूम है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं और एकदम लास्ट में देखिए एक लिंक प्रोवाइड की गई है, तो क्लिक ऑन दैट लिंक यू विल गेट फार्मूला। Here summation r, फार्मूला फॉर समेशन r इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। अब ये फर्स्ट टर्म के लिए है, ये फर्स्ट टर्म है समेशन r और फ्रॉम r इक्वल टू 1 to 35। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं n इक्वल टू 35 पुट करेंगे, तो 35 इंटू 35 प्लस 1 अपॉन 2। यू कैन चेक हियर इट इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 35 इंटू 35 प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ पर हमें n की वैल्यू क्या रखनी है 35 फॉर द फर्स्ट टर्म, माइनस here r equal to 1 to 35 1 means 1 plus 1 plus 1 plus 1 35 times, तो ये 35 हो गया। ओके, तो माइनस 35। अब इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर ये 2 2 जा 4, तो यहाँ पर हो गया 2, तो इट कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड बाई 35 इंटू 36 माइनस 35। तो वी सी दैट हियर 35 कॉमन, यहाँ पर क्या कॉमन है 35, तो 35 कॉमन कर लिया तो हमारे पास क्या आता है 2 इंटू 36 दैट इज 72 माइनस 1। हियर इट इज 71, तो 71 मल्टीप्लाइड बाय 35,
if we multiply these two terms we get 2485. So therefore sum of the given sequence या simplest form of the given sequence is 2485. ये रहा हमारा फाइनल आंसर। क्योंकि देखो 70 स्क्वायर माइनस 69 स्क्वायर, तो इमीडिएटली वहां पर गेस कर सकते हो कि हमारे पास कितना नंबर यहाँ पर आ रहा है। फिर नेक्स्ट नंबर डिक्रीज होगा, उसके आगे फिर डिक्रीज होगा, और फिर सबको फाइनली हमें क्या करना है, प्लस एडिशन करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमारे पास जो नंबर्स आते हैं वो हैं 2485। ये नंबर हमें टोटल मिला करके आ जाता है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द सम 1 into 3 into 5 plus 3 into 5 into 7 plus 5 into 7 into 9 plus and so on plus 2n minus 1 plus into 2n plus 1 into 2n plus 3. तो देयर इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द थ्री टर्म्स। यहाँ पर जो हमें सीक्वेंस दी गई है, देखिए solution since 1 into 3 into 5 plus 3 into 5 into 7 plus 5 into 7 into 9 plus and so on plus 2n minus 1 into 2n plus 1 into 2n plus 3। और स्टूडेंट को यहाँ पर ध्यान देना है कि टेक्स्ट बुक में यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसके लिए यहाँ पर स्टार मार्क भी लगा हुआ है। तो ये क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लिया गया है, क्वेश्चन को करेक्ट करके यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर होना चाहिए करेक्ट, जो क्वेश्चन का प्रिंटिंग होना चाहिए था वो 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 अकॉर्डिंग टू दीज टर्म्स। तो आइए देखते हैं कि यह क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ द थ्री टर्म, जो हमारे पास अभी सीक्वेंस आता है कि ईच सेट इज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स। तो प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स हैं, तो इसमें हमारे पास nth टर्म ऑलरेडी गिवन है। तो अगर हम लोग यहाँ पर tn मालूम है तो इनका जो tn है क्या है 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3। तो अगर हम लोग इसको समेसन फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इट इज इक्वल टू समेसन r इक्वल टू 1 टू n 2r माइनस 1 इंटू 2r प्लस 1 इंटू 2r प्लस 3। क्योंकि हमें tn मालूम है तो हम उसको tr में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर द समेसन 2r माइनस 1 2r प्लस 1 2r प्लस 3। ये हो गया अपना समेसन r इक्वल टू 1 टू n। अब इसके बाद ये मल्टीप्लाई ऑल द थ्री ब्रैकेट्स, ये तीनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। मींस अगर हम लोग सेपरेटली लिखते तो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ईच सेट यहाँ पर, तो ये होता हमें 1 प्लस 3, जैसे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। फिर सेकंड प्रोडक्ट ऑफ ईच टर्म 3 5 7 9 एंड सो ऑन। थर्ड प्रोडक्ट ऑफ ईच टर्म 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ये सब मिलता। फिर उन तीनों का टी आर फाइंड कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ टी आर फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज टी एन इज गिवन। तो वी शुड कन्वर्ट डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ टी आर, और हमें टी आर के फॉर्म में यहाँ पर मिल गया 2r माइनस 1 2r प्लस 1 2r प्लस 3 फॉर r इक्वल टू 1 टू n, ये समेसन के लिए। अब इन तीनों ब्रैकेट को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इफ यू मल्टीप्लाई ऑल द थ्री ब्रैकेट्स वी गेट 8r क्यूब प्लस 12r स्क्वायर माइनस 2r माइनस 3। ये हमें टर्म यहाँ पर मिलेगा इन तीनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद। सो समेसन r इक्वल टू 1 टू n। अब हम ये एक्सपेंड करते हैं इनके साथ, एक एक के साथ, तो ये हो जाएगा समेसन r इक्वल टू 1 टू n 8r क्यूब। लेकिन 8 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। 8 क्या है, कांस्टेंट। तो 8 को हम लोग इजिली बाहर लिख सकते हैं। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय समेसन r इक्वल टू 1 टू n r क्यूब प्लस अभी हो जाएगा समेसन 12r स्क्वायर। तो 12 टेकन आउट मल्टीप्लाइड बाय समेसन r इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर माइनस समेसन 2r, तो यहाँ पर माइनस 2 समेसन r इक्वल टू 1 टू n r माइनस 3 समेसन 1 r इक्वल टू 1 टू n। यहाँ पर भी 1 लिखना है तो इसको हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं, समेसन r इक्वल टू 1 टू n। ये हो गया कंफर्म। अब इसके बाद ये सभी वैल्यूज समेसन की जो है सिग्मा नोटेशन के सभी वैल्यूज हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें ऑल द 4 फार्मूले फॉर समेसन लिखना ही है। तो ये एक बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर हम लोग सभी फार्मूले पाते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें समेसन 1 समेसन आर स्क्वायर समेसन आर क्यूब, ये तीनों ही मिल जाते हैं। तो आइए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। तो इनका तीनों का फार्मूला यहाँ पर लिखते हैं और इनको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। तो 8 एज इट इज समेसन आर क्यूब इज n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4।
plus 12 into summation r square, that is n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6, minus 2 into summation r becomes n into n plus 1 upon 2, and minus 3 into summation 1, that is minus 3 into n. तो ये हमें 4 फार्मूले का यूज करने के लिए एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऑल द 4 फार्मूले एट अ टाइम यूज करना होता है यहाँ पर। अब इसके बाद ये 4 टू जा 8, तो ओनली 2 रिमेनिंग यहाँ पर, और ये 6 टू जा 12, यहाँ भी ओनली 2 रह जाएगा। और इसके साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, ये इस ब्रैकेट को एक्सपेंड भी कर लेते हैं। तो 2n स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 प्लस, अब देखो यहाँ 6 टू जा 12, तो 2n इंटू दीज टू ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3 माइनस n इंटू n प्लस 1 एंड माइनस 3n, क्योंकि यहां पर भी 2 गोइंग बाय 2 ये कट हो चुका है। तो अब इसके बाद जो हमारे पास टर्म्स आते हैं कि वी सी दैट हियर, अब सब चारों टर्म में क्या कॉमन है, ओनली n। देखो यहां से n इंटू एन, n ले सकते हो कॉमन, n कॉमन, n कॉमन एंड n कॉमन, ओनली n कॉमन। तो टेकिंग n कॉमन फ्रॉम ऑल द 4 टर्म्स, n कॉमन करने के बाद अब हमारे पास जो टर्म यहां पर आता है वो है n इंटू एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, क्योंकि देखो वन टाइम n कॉमन हुआ, वन टाइम रिमेनिंग, तो यहाँ पर हमारे पास और ये 2n बाकी क्या रह जाएगा 2n, तो 2n से हम लोग ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2n इंटू एन स्क्वायर 2n क्यूब, 2n इंटू 2n प्लस 4n स्क्वायर, 2n इंटू प्लस 1 प्लस 2n, क्योंकि ये देखो इसको हम लोग लिख लेंगे n इंटू 2n, तो n कॉमन है और 2n का मल्टीप्लाई इन द ब्रैकेट, और यहाँ पर n कॉमन, सो मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन द ब्रैकेट। So this will be 2 into 2n square, that is 4n square plus 6n plus 2. Here n common, so just open the bracket and change the sign. So minus n minus 1, and here only minus 3 remaining because n is common. तो अब क्या करते हैं, ये होल ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसके बाद ही हमारा फाइनल आंसर सेटअप हो जाएगा यहाँ पर। सो 2n क्यूब ओनली वन टर्म, अब इसके बाद 4n स्क्वायर यहाँ पर है और एक 4n स्क्वायर यहाँ पर है, प्लस 8n स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद 2n प्लस 6n, 8n माइनस n, दैट इज प्लस 7n, और इसके बाद ये माइनस 3 माइनस 1, दैट इज माइनस 4, और यहाँ पर है प्लस 2, तो माइनस 4 प्लस 2 बिकम्स माइनस 2। तो इट्स फाइनल आंसर इज n इंटू 2n क्यूब प्लस 8n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 2। So this is the final answer for question number 8. तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ तक ही क्लोज करते हैं। फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज एंड फॉर द रिमेनिंग चैप्टर्स एंड अदर क्वेश्चंस फॉर द अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और यू कैन से जेई, सीटी, रेलवेज, बैंकिंग, एनडीए, सेट, कैट एटसेट्रा, ऑल दीज एग्जाम्स। तो ये सभी क्वेश्चंस, ये सभी एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए और अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए और अपने बोर्ड एग्जाम का पैटर्न या क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोज। थैंक यू सो मच।